Assalamu alaikum, everyone. This is Memuna, lead GDSC Air, and we are having a session on Google Solution Challenge. And we have our esteemed mentors Aska Ahmed and Hassan Yousafzai, who had been serving as GDSC leads for the past year. This session is about solution challenge and what are the criteria, submission, and perks for the ones who partake in it. So, Aska, could you please tell us about the solution challenge? Okay, so basically, let me see. Okay, so what's up with the Google Solution Challenge is that Google has this one, you can say, competition each year. जिसके अंदर they want you to solve any sort of local problem that sort of fulfills one of the UN's 17 SDGs. And आप उसके ऊपर कोई भी एक technical solution present करते हैं, anything that can sort of help out and bring a better change in your society or in your community. Um, so just to break this down, what are the UN 17 SDGs? United Nations के 17 Sustainable Development Goals हैं that sort of fulfill different areas and themes. तो आपकी poverty, hunger, climate change, inequality, gender equality, is those sort of things. उनके ऊपर वो focus करते हैं. And what they want you to do in the Google Solution Challenge is that आप अपने local community, local area के अंदर, you try and find any sort of issue that you, by solving that, fulfill as SDG, and then the way you fulfill the solution and everything is via a technical solution. So आप एक app create कर सकते हो, you can create a website, any sort of thing, and it should leverage some amount of Google technologies in that, considering it's a competition that is done or like sponsored by Google, right? अब solution challenge के अंदर क्या होता है कि I've explained the start and all that. Once you give in your submission, for instance, जो kickoff events हैं, you create like a prototype. It should be a working prototype to some extent. For instance, if you're creating a Flutter application, तो आप लोगों की application at least इतनी हो कि उसकी UI जो है उसके साथ आप interact कर सको, right? And then once you create that sort of application, you create that sort of prototype, उसके अंदर आप the Google technology leverage किया, you have to sort of explain to what did you really make. जो सबमिट वगैरह कर रहे हो तो you have to create like a video, you have to create some graphics, UI वगैरह present करना होता है, and in that video you have to tell कि okay, what is the problem that we're solving, what is the SDG that we're focusing on, and then in what way are we really bringing in some sort of solution for that. अब once you've submitted that, एक दफ़ा इसकी timeline ऐसे चलती है कि आपने submission कर दिया. What happens is that आपकी ना पहले initial shortlisting होती है. The top 100 people get shortlisted all over the world. Like globally इसकी ही marking वगैरह होती है. कोई local पहले different competition नहीं होता. Once those people get sort of shortlisted, top 100 होते हैं, then they get mentorship from Google employees and GDEs, etc. They sort of help them understand कि जो भी आप application create कर रहे हो, जो भी आपने prototype create किया, उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हो, अपने idea को किस तरीके से refine कर सकते हो, and then उसके बाद आपकी फिर से submission होती है, वो round 2 की submission होती है. Once round 2 की judgment हो जाती है, top 10 announce होते हैं, लिहाज से वो top 3 को perks देते हैं, and then the rest of the people get perks accordingly for that. And उसकी eligibility ये होती है कि you have to be a university student, either you're a graduate student or an undergraduate student, and आपकी जो है ना, आप you should be a part of a GDSC. So what does being a part of a GDSC mean? It doesn't really necessarily mean कि आपको core team का part होना ज़रूरी होता है. What you can do is that you can also be like a community member. Community member simply आप किसी GDSC के Bevy page पे जाएं, just join that page, and then the email that you join through आप उसके थ्रू अपनी सबमिशन करेंगे when Google फॉर्म जो होता है. टीम जो होती है वो 1 to 4 people की होनी चाहिए, and the team representative, the lead should be someone from a GDSC, and आप different universities, different countries, different chapters, क्रॉस कम्युनिटी टीम्स बना सकते हैं, बहुत easily बना सकते हैं. The only condition is कि मतलब you should be a GDSC member for that. तो once you're done with that, आपकी simply मतलब प्रोटोटाइप बिल्डिंग डिजाइन वो सारी चीजें आपने करनी होती हैं, आइटरेट करना होता है. दे वांट यू टू टेस्ट योर सोल्यूशन एज वेल. तो जो भी आप ऐप वगैरह क्रिएट करते हो, आप उसकी कोई भी सर्विस करवा सकते हो, कोई भी टाइप ऑफ टेस्टिंग करवा सकते हो, एनीथिंग लाइक दैट. दे बेसिकली जस्ट वांट टू सी कि आपकी एक तो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी किस लिहाज से, एज वेल एज हाउ गुड एंड हाउ एफिशिएंट योर सोल्यूशन इज. तो that's just like a short introduction. कि solution challenge होता क्या है, what are the main requirements for that, what are they really asking you for, and yeah.
I think next over to Hassan. If you want to add something or continue from here. हसान, आप हमें थोड़ा सा पर्क्स वगैरह का बताएं, किस तरह शॉर्ट लिस्टिंग होती है और किस तरह शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप किस फेज में जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स इवेलुएट किस तरह से होते हैं इस ठीक है। तरह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ना, आई थिंक अगर मैं गूगल सॉल्यूशन चैलेंज की अगर मैं आपको वेबसाइट बता दूं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप आइडियाज़ किस तरह किस तरह आइडियाज़ बना सकते हैं, एंड थोड़ा सा आप ये भी देख लें कि किस कौन कौन से जो गोल्स हैं, और उस हिसाब से तो ये होगा कि मैं आपको थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स भी दे दूंगा कि हमने किस तरह अपने सॉल्यूशन चैलेंज में हमने किस तरह अपने आइडियाज़ देखे। अच्छा, मेरे पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका अगर आप अपनी स्टॉप कर दो क्या। Admiral? ये Okay. अच्छा, ये वेबसाइट है गूगल फॉर डेवलपर्स वालों की, जिसमें उन्होंने सॉल्यूशन चैलेंज के बारे में भी बताया हुआ है, एंड जो उनके गोल्स हैं बेसिकली। अब जिस तरह यहाँ पर 17 गोल्स अगर आप देखोगे, तो आप आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी जिस जो आप कवर कर सकते हो, राइट। सो लास्ट ईयर हमारा आइडिया, लाइक मैं पिछले 2 सालों से मैंने अप्लाई तो किया था, एंड हर दफ़ा कुछ न्यू चीज़ प्रेजेंट की थी। सो एक अगर मैं आपको लेट्स सपोज, अगर आपको मैं एक आइडिया दे दूँ, लेट्स सपोज हमने लास्ट ईयर एक आइडिया बेसिकली हमारा ये था कि हमने क्या करना था कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर जिस तरह पाकिस्तान इफ़ेक्ट हुआ था फ्लड्स और इन चीज़ों की वजह से, तो उससे जो सबसे मेन इशू था वो ये था कि बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हो गए थे, सही है। एंड बहुत सारे लोगों के पास बेसिक चीज़ें नहीं थी कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। बहुत सारे इश्यूज थे, एंड उसमें बहुत सारे फिर एनजीओज इन्वॉल्व हुए जो वो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। सो व्हाट वी वांटेड टू डू के, लाइक हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाह रहे थे जिसमें लाइक आप लेट सपोज एक जगह है चारसदा, लेट सपोज वो अफेक्टेड है, ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पे मसले चल रहे हैं, एंड एक ऐप हो जिसमें आपको पता हो कि अच्छा चारसदा अफेक्टेड है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, बीइंग ए नॉर्मल पर्सन। मैं लेट सपोज एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं किसी एनजीओ का पार्ट नहीं हूँ, ना गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो हम एक प्लेटफॉर्म इसी तरह बना रहे थे कि जहाँ पर आपको पता चले कि अच्छा कौन सी जगह अफेक्टेड है, और उसके अलावा वहाँ पे कौन-कौन से एनजीओज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जिनको आप डोनेट कर सकते हो, या कोई वॉलंटियर वाली कोई चीज़ कर सकते हो। एंड इट वाज़ नॉट एंटायरली फॉर द फ्लड सिचुएशन, लाइक ओवरऑल भी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अगर आप नॉर्थ साइड पे थोड़ा-सा जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, वहाँ पे बहुत सारे मसले होते हैं। लेट्स सपोज़ एजुकेशन की चीज़ नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वी वांटेड टू कवर दैट पार्ट। सो वो हमारा आइडिया था, एंड सॉल्यूशन चैलेंज में बेसिकली वो आपको आपका डूज़ में जो एक सबसे अच्छी बात है वो यही होती है कि वो आपको कहते हैं आप अपना लोकल कोई प्रॉब्लम आप उठाओ, जो आपको फ़ील होता है कि ये आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? एंड बेसिकली जीडीएससी का भी मेन गोल यही होता है कि आप अपनी लोकल कोई प्रॉब्लम उठाओ और उसे सॉल्व करो। सो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप कोई भी आइडिया पिच कर रहे हो, वो आपका लोकली होना चाहिए, लोकली आप कोई चीज़ उससे अफ़ेक्ट हो रही हो। सो ये बेसिकली हमारा आइडिया तो हमारा ये था। बट एक जो सबसे बड़ा मसला जो डोंट्स वाली चीज़ में है वो ये कि हमारा आइडिया जो था, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ठीक से पूरा नहीं था। आई मीन उसमें और तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बनी हुई थी, लेकिन जो हमने चीज़ कही थी, लेट्स सपोज़ आप एक चीज़ लिखते हो तो आपको फिर वो चीज़ दिखानी भी पड़ती है, ठीक है? सो हमने कहा था कि हम इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, और हमारे पास सिर्फ़ उसका यूआई पार्ट था बेसिकली। तो जो सबसे डोंट्स वाली चीज़ में मैं यही कहूँगा कि अ, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते भी हो, सो कोशिश करो कि आप एटलीस्ट उसमें से कोई 1-2 पार्ट जो है आप फंक्शनल करो, वरना वो जो है प्रोटोटाइप जस्ट यूआई पार्ट जो है वो आपको कोई एज़ सच हेल्प नहीं करेगा। एंड पिछले लाइक बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं टॉप 200 पे भी लास्ट ईयर कोई नहीं आया था। ऑल्दो आइडियाज़ सबके बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी को
एग्जैक्टली पता नहीं था कि हम किस तरह की चीज़ पिच कर सकते हैं। लोगों की मैंने वीडियोस भी देखी थी, उनकी वीडियोस भी बड़ी मज़े की थी एंड पिचिंग भी सब अच्छी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि प्रोजेक्ट्स वो चीज़ उन्होंने जो उन्होंने अपनी वीडियोस में कहे हुए थे। सो ये एक बड़ा मसला होता है। मेमुना कैन यू प्लीज़ रिपीट आपका आपने 2-3 चीज़ें एक साथ पूछी थी, मेरे ज़हन से हाँ, निकल गई। तो हम उस प्रोजेक्ट को सबमिट किस तरीके से कराएँ? कोड जाएगा या फिर मतलब किस तरह सबमिशन किस तरीके से करनी है प्रोजेक्ट की? ओके, प्रोटोटाइप या कोई या वीडियो वगैरह? सब हाँ, सबमिशन में बेसिकली होता है इस तरह कि आप अपने गिटहब का लिंक देते हो, जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट ऐड रिपॉज़िटरी आपने बनाई हुई होती है, ठीक है? उसके अलावा आप एक वीडियो बनाते हो जिसमें आप बेसिकली एक्सप्लेन करते हो कि आपने प्रोजेक्ट में बनाया क्या है एंड क्यों बनाया है। जिस तरह आप नॉर्मली अगर किसी आइडियाथॉन या किसी हैकाथॉन पे जाओ, जहाँ पर आप यू you नो बता रहे होते हैं आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने ये इसीलिए बनाया, और लाइक ओवरऑल आपने सारी चीज़ें उसमें कवर करनी होती है कि क्यों आपने बनाया है, किस चीज़ के आपको लाइक मोटिवेशन मिली है, क्या चीज़ आपने सोच के बनाया है, कौन-सा आप यूएन का गोल कौन-सा कवर कर रहे हो। तो आपने शॉर्टली आई थिंक 90 सेकंड्स या आई थिंक 120 सेकंड्स इस तरह की वो होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे आपने उस हिसाब से जो है उस वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, अपने प्रोजेक्ट की उनको लाइक वीडियो बना के देनी होती है कि ये प्रोजेक्ट इस तरह काम कर रहा है एंड ओवरऑल सारी चीज़ें आपने उसमें बतानी होती हैं। सो ये सीन होता है बेसिकली, और टीम का सिर्फ एक ही मेंबर उसे सबमिट करा सकता है जो टीम को लीड कर रहा होता है या लीड कर रही होती है। तो बेसिकली ये होता है। सही हो गया, फिट है। और पर्क्स ज़रा बताएँ लोगों को खुश करने के लिए। अच्छा, पर्क्स अगर मैं बताऊँ तो पर्क्स बेसिकली उनकी जो एक सबसे मज़े की चीज़ होती है कि देखिए, सबसे पहले अगर आप टॉप 200 या आप टॉप 100 में आते हो, तो सबसे पहले ये होता है कि यार वो एक तो अपनी सारी वेबसाइट्स वगैरह आपका बताते हैं कि यार आप इस कंट्री से हो एंड आपने ये चीज़ पिच की थी एंड आप जो हो ना, अभी आपके प्रोजेक्ट जो है वो लाइक वर्ल्ड 200 में है, ठीक है? वो आपको एक रिकॉग्निशन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली क्योंकि टॉप 100 में आते हैं और उसके बाद उनके आपने ऑब्वियसली टॉप 10 में आना होता है एंड उसके कुछ राउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आप यही इसी तरह वीडियोज़ वगैरह आप सबमिट कराते हो। आप टॉप 100, टॉप 200 में आते हो एंड उसके बाद उनका डेमो डे और इस तरह की और चीज़ें होती हैं जिसमें वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं आगे के लिए। एंड जब आप टॉप 10 में आते हो तो उधर आपको जो है एक ये होती है कि मेंटरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गूगलर्स होते हैं सारे, वो आपकी चीज़ों को देख रहे होते हैं एंड क्या कहते हैं, आपके प्रोजेक्ट को वो देखते हैं, उस हिसाब से जो जितने भी गूगलर्स होते हैं वो आपको खुद गाइड करते हैं, खुद मेंटर करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। आई फ़ील लाइक आपको कुछ कैश प्राइज़ेज़ भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो आई फ़ील लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंटरशिप की होती है, क्योंकि आपके वहाँ पे कुछ कनेक्शंस बनते हैं, जो ऑब्वियसली आप फर्दर आगे भी आपको वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा कुछ कैश प्राइज़ होता है जो मुझे अभी इस दफ़ा अभी याद नहीं है इस दफ़ा कितना है, बट $3,000 आई per team member। पर टीम मेंबर $2000, $3,000। $3000 या तो ऑब्वियसली कैश प्राइज़ भी है, साथ में गूगलर्स की तरफ से आपको मेंटरशिप है एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन है। आपको गूगल डेवलपर्स ब्लॉग में और डेमो डे जो बिल्कुल बेसिकली उनका लाइव स्ट्रीम होता है, उस पे आपको फीचर करते हैं एंड वहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, जो आई फ़ील लाइक अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में अगर आप ऐड करते हो ना कि आपको ऑब्वियसली गूगल ने रिकॉग्नाइज़ किया है, आप ये जीते हो, तो आई फ़ील लाइक ये आपके लिए आपकी पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड आपकी पोर्टफोलियो के बहुत हेवी बनाती है। सो या सही हो गया। चलो अब थोड़ा-सा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे बात करते हैं इसका। ओके, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूँ, मैं कर दूँ अपनी। एक सेकंड, यस। अच्छा, तो ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया, लेकिन आई थिंक इस साल भी यही वाला यूज़ होगा। तो उसका सीन ये है अबाउट द इवैल्यूएशन, लाइक आई मेंशन्ड, देख रहे होते हैं, दे आर लुकिंग फॉर द इम्पैक्ट एंड दे आर लुकिंग फॉर द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इम्पैक्ट क्या सीन आता है कि वही बात जिस तरीके से
अनमेंशनड कि क्या जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो सोल्यूशन एंड टारगेट्स आपने प्रेजेंट किए हैं आर दोज बीइंग रियली एड्रेस्ड, कि आपने बस हवाओं में बातें कर दी और कोई ऐसी सी चीज़ उठा के सबमिट करा दी है, कि कोई क्लियर प्लान वगैरह आप लोगों ने आगे दिया है, कोई चैलेंज को एड्रेस किया जा रहा है, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करते हैं या नहीं। अब एक ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूएन के, उनकी वेबसाइट पे आप बेशक चले जाओ, तो व्हेन यू क्लिक ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके नीचे ना आते हैं। अब व्हाट दे वांट यू टू डू इज के, एंड दिस इज जस्ट अ जनरल advice for projects in general, like के never go for a very big scope, first try to be very specific towards your प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो ये भी चीज़ डाल देंगे, वो भी डाल देंगे, करते 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 उनके प्रोजेक्ट में इतने वो एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं, उनसे वो बनती नहीं है चीज़। तो इट्स सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड कि आप अपने ना नीश को आइडेंटिफाई करो। तो इफ़ यू गो टुवर्ड्स द वेबसाइट, आप किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्लिक करते हो, उस पे सर्च करो, ट्राई टू फुलफिल मे बी 3 or 4 टारगेट्स। तो उस तरीके से ना यू आर एबल टू स्पेसिफाई वेरी क्लियरली कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। तो उस तरीके से आपके इम्पैक्ट को जज करते हैं। एंड देन उसके बाद फीडबैक पॉइंट्स, बिकॉज दे वांट यू टू टेस्ट योर सोल्यूशन। आइट्रेशन की उन्होंने बात की, इट मीन्स के जस्ट टेस्टिंग एंड getting feedback in general for base that they're aiming for. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चूट करो, जितना आप यूजर एक्सपीरियंस अच्छा लाओगे, जितना आप यूजर की कंसिडरेशन को अपने इम्पैक्ट एंड प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करोगे, उतना इट वुड बी, आप कह सकते हो, अप्रिशिएटेड आई थिंक। उसके अलावा देन टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर आते हैं, इट्स ऑल ऑफ द टेक्निकल कंपोनेंट्स। उसके अंदर ये आ जाता है कि आपने कितना टेक्निकली प्रोफिशिएंट प्रोजेक्ट आपने बनाया है, गूगल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है, वो स्पेसिफिक गूगल टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की गई है। फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे इन द पास्ट, दैट वन जिसके अंदर ऐसा था कि मे बी देर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ नेविगेशन सिस्टम, तो उसके अंदर गूगल मैप्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। उसके अलावा जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो किस तरीके से को शो करता है, डेमो किस तरीके से आपने अच्छा बनाया है, किस तरीके से उसको स्केल किया जा सकता है, आर्किटेक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जजमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो सबमिशन वाले प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं कि एक तो प्रोजेक्ट किस तरीके से सेटअप किया, कौन सा टारगेट आपने चूज़ किया। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो जो वाला पोर्शन है, उसमें दे मेंशन के गोल कौन सा है एंड टारगेट कौन सा आपने चूज़ किया, क्योंकि दे वांट यू टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसके अलावा फिर आर्किटेक्चर आ जाता है आपका, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, रीजनिंग बिहाइंड दैट, किस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन रखी है अपने प्रोजेक्ट की, वो किस तरीके से अपना किया है, टेस्टिंग किस तरीके से की है। एंड देन उसके अलावा फिर आगे टुवर्ड्स द फ्यूचर आप किस तरीके से उसको ना लाइक एम्फोसाइज कर रहे हो। अगर आप पिछले साल के भी प्रोजेक्ट्स, फॉर इंस्टेंस 2023 के जो विनिंग प्रोजेक्ट्स थे, इधर गए, यस ओके, जो 2023 के विनिंग थे उसके अंदर भी ये था, एंड दिस इज जस्ट अ जनरल थिंग जो कि ना ओवर द इयर्स एक ट्रेंड मैंने भी नोटिस किया है, कि द प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स लाइक एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन एरिया। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बात करते हैं मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की इन बोलीविया, जिस सान ने बात की थी अबाउट देयर प्रोजेक्ट की दे वर वर्किंग टुवर्ड्स लाइक फ्लड्स एंड ऑल दैट, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर दैट वाज अ वेरी स्पेसिफिक इशू। कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि फॉर इंस्टेंस 3D प्रिंटिंग फॉर लाइक ब्लाइंड पीपल, ताकि वो ब्रेल रीडर्स वगैरह क्रिएट कर सकें। डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए था, आई रेड अबाउट लाइक अल्जाइमर्स पेशेंट्स के लिए कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, एनी पीपल, blind people के लिए कौन सा like headsets that allow them to view stuff easily or better IoT चीजें that have won in the past, these sort of show कि आपने एक बहुत specific problem को target किए, हेल्थ केयर की डोमेन अंदर भी आपने एक नीश निकाली है, एंड देन उसको आपने एक बहुत इनोवेटिव तरीके से क्रिएट किया। एंड वन थिंग यू मस्ट नोटिस कि यहाँ पे काफ़ी एम्फोसिस है कि कौन सी उन्होंने गूगल टेक्नोलॉजीज एंड जनरल टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं। जैसे मैप हो गए, यहाँ पे फायरबेस यूज़ किया था, दे यूज्ड टेक्स्ट टू स्पीच API, गूगल क्लाउड यूज़ किया था, वर्टेक्स यूज़ किया था, आगे आई बिलीव एक और, या फ्लटर, टेंसरफ्लो, अगर आपका ML का प्रोजेक्ट है, तो these sort of things, right? तो if you have found your project, you would break it down by first of all गोल कौन सा आपने चूज, SDG कौन सा चूज किया, SDG में टारगेट कौन सा चूज किया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आपकी कंट्री के अंदर हाउ डज दैट अफेक्ट दैट प्रॉब्लम। उसके बाद आपने टेक्नोलॉजीज अपनी चूज कर ली हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट आर्किटेक्चर, आप उसकी यूजेबिलिटी किस तरीके से बेहतर करते हो, वंस यू क्रिएटेड योर प्रोजेक्ट, योर MVP, आप उसको टेस्ट किस तरीके से करते हो, फीडबैक क्या आता है लोगों का, आपने लोगों को कितना इन्वॉल्व किया इन द प्रोसेस, एंड वंस दैट्स डन आप जितना उसको आइट्रेट करते जाओ, जितना आप उसको स्केलेबल लेके जा सकते हो। बिकॉज द थिंग इज गूगल के जो यूजली प्रोग्राम्स होते हैं दे वेरी इंटरकनेक्टेड।
तो इफ़ यू मस्ट हैव नोटिस, इस दफ़ा गूगल फॉर स्टार्टअप्स की एक इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो दे वुड वांट कि द पीपल जो कि यहाँ पे सबमिट कराते हैं अपने सोल्यूशन चैलेंजेस, वो इतना स्केलेबल रखें अपने सोल्यूशन को कि वो आगे स्टार्टअप्स के तौर पे अप्लाई कर सकें, एक वो इनोवेशन की स्ट्रीम क्रिएट हो सके। तो दैट्स व्हाट यू रिकमेंडेड एज कि जब आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, इवन इफ इट्स एन एफआईपी, क्योंकि आजकल लोगों के एफआईपी आइडियाज आर क्वाइट इनोवेटिव एंड काफी लोकल प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे होते हैं। तो उसको इस तरीके से आप डिफाइन करो कि इट्स स्केलेबल टुवर्ड्स इन द फ्यूचर एज वेल। Thank, thank you so much, Oscar, for the demonstration. किसी को questions हैं तो वो पूछ सकता है.